Let's start this. A very good morning, guys, to all of you present here. Today, we all are here to have a conversation with our respected super seniors, Mr. Adarsh Srivastav sir and Mr. Sunny Pamnani sir. Welcome, sir. Welcome, both of you. Okay, a little introduction about them. They both are well placed in a multi MNC named Cognizant, certifying the role of a full stack engineer, and they both have cracked the TCS earlier too. Beside this, they all are very good friends too. तो आज का जो मेन एजेंडा है वो यही है कि टीसीएस की प्रिपरेशन कैसे करें और इस टीसीएस का एग्जाम कैसे करें इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो इसी चीज पे आज हम लोग लाइव इंटरेक्ट करेंगे आदर्श सर से और सनी सर से. लेट्स स्टार्ट दिस एंड Thanks सर आदर्श सर for such a great introduction. Thanks, Anshul. Okay. Yes, sir. Yes, so the thing is, today we are here to talk about the TCS NQT and TCS Ninja. So first of all, the Anshul has given me a great introduction, but I would like to introduce myself also. My name is Adarsh Srivastav, and I have graduated in 2020. So during my engineering time, I have done I have given the TCS NQT exams and TCS Ninja exams, and also qualified in that. And later I joined Cognizant for my future opportunities. So now, Sunny, are you here? Yes, Adarsh, I am here. So thank you, Anshul, for the great introduction. So I'm going to introduce myself. So my name is Sunny Pamnani, and I am 2020 pass out from CSE branch, and I am placed in Cognizant as full stack engineer. I have also given the TCS NQT and Ninja exam, and I have qualified both of them. So thank you very much, Adarsh and Anshul. Okay, so Anshul, can you go up with the agenda directly? Yes, sir. Yes, sir. So as you can see, it's on the screen. There are 7 major topics that we will discuss in our today's session. And beside this, after this session, the discussion will be of audience query will be there. Okay. So, sir, the first and most favorable topic is what is TCS NQT and TCS Ninja, because most of them are confused that they are whether the same things or different things. So, sir, please elaborate in detail. So this is a very confusing question that you have asked, because Yes. when I was in my college time, so I also got confused in these two. So that's a nice question, Anshul. So first of all, I want to talk about TCS Ion. So TCS Ion is a platform in which the TCS. Sir, I would interrupt you. Okay. Sir, please prefer both languages, Hindi and English, so that our audience does not get confused. Okay, so the thing is, जो ये TCS होता है उसका एक प्लेटफॉर्म भी होता है जिसका नाम होता है TCS Ion. तो TCS Ion पे होता क्या है कि TCS अपने एग्जाम्स को वो करवाता है. तो उससे होता है क्या है कि आप जो TCS, ऐसा नहीं कि सिर्फ TCS एक TCS ही कंपनी है, TCS के अंदर बहुत सारी एफिलिएटेड कंपनीज भी हैं. तो TCS NQT और TCS Ninja में फर्क सिर्फ इतना ही है. TCS NQT होता है नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट. तो उससे क्या होता है कि TCS से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो टाटा के जितनी भी अलाइंस हैं वो हो जाती हैं. बड़ी बड़ी बैंक जैसे आरबीएल बैंक, कोटक बैंक और ब्रिजस्टोन का नाम सुना होगा. तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, मतलब एन नंबर ऑफ कंपनीज है जो TCS NQT को प्रेफर करती हैं अपने में कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए. अगर हम बात करते हैं TCS Ninja की, तो TCS Ninja is just like we can say just like a profile. So what TCS Ninja profile is? So what TCS do? TCS hires few candidates from the TCS Ninja profile, and the package of this is approx 3.36. And if you are postgraduate, then it will be a 3.6. So this is a very low profile in, we can say that it is a low, or we can say it is a starting profile for the TCS. So there is one more profile that is not written here, that is TCS Digital. And that is really a good profile. So जब हम लोग अपना TCS NQT का एग्जाम दिए थे, तो उसमें होता क्या था कि आप अगर TCS NQT का उसमें TCS Ninja के लिए दिया था, तो अगर आप TCS NQT में 90% के अबव स्कोर करते हो, 90% के अबव स्कोर करते हो, तो आपको TCS डिजिटल के लिए सेलेक्ट किया जाता है. TCS डिजिटल में क्या होता है, जितनी भी आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं लाइक ML, डेटा साइंस, IoTs, उन पे वर्क कराया जाता है. और साथ ही साथ उसका पैकेज भी ज्यादा होता है, जो पैकेज अप्रॉक्स होता है 7 lakhs. सो ये 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं
तो जब मैंने और सनी ने ये एग्जाम दिया था, तो वी हैव गिवन द टेस्ट फॉर एनक्यूटी एंड वी गॉट सेलेक्टेड फॉर द निंजा. And after giving the ninja, so we were the top 100 in the NQT exam. So we got selected for the TCS digital profile, and after that we got the offer letter. Okay, sir. That's great to hear, sir. And the second question is, Sanibhai, to you. That as Adarsh sir talked about that package, annually package, it was something 3.6 and 3.46. So is it for the freshers, right? यस, ये पैकेज जो है फ्रेशर्स के लिए है. जैसे कि आदर्श सर ने भी बताया कि टीसीएस एनक्यूटी क्या है, क्वालिफायर टेस्ट है. जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा एमकैट और कोक्यूब्स है, वैसे ही ये क्या कराता है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट कराता है. उसके बाद अलग अलग कंपनी में जो टीसीएस के एफिलिएटेड हैं और भी कंपनीज हैं, उनमें ये इंटरव्यू वगैरह प्लेस करवाता है. और टीसीएस एनक्यूटी की फीस होती है, लेकिन निंजा की कोई फीस नहीं होती है. निंजा क्या है, सिर्फ टीसीएस अपनी कंपनी में लेने के लिए टेस्ट कराता है. तो निंजा का पैकेज है 3.36. अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 3.6 उसका पैकेज हो जाता है. लेकिन इसी में एक होता है डिजिटल. तो अगर आप डिजिटल के लिए अपीयर होते हैं, तो डिजिटल होता है सिर्फ टॉप टायर कॉलेजेस के लिए. लेकिन अगर आप एनक्यूटी में अच्छा परफॉर्म मतलब निंजा में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको डिजिटल का चांस मिलेगा. जैसे आदर्श और मैंने किया था, तो हम लोगों का टॉप 100 में था, तो हम लोगों को डिजिटल का मौका मिला था. तो हम लोगों ने डिजिटल में भी अपीयर हुए थे हम लोग. तो Okay, sir. पैकेजेस की बात करें, निंजा में पैकेज होता है 3.36 to 3.6, और हम लोगों का डिजिटल में होता है 6.5 to 7. So these are the packages. Okay, sir. The next question is, Adarsh bhai, to you, that what is the eligibility criteria and the process for this TCS NQT and TCS Ninja both? Okay, so the eligibility is like आप बीटेक या बीसीए या आप एमसीए या एमटेक ये हो. सो ये तो एक बेसिक हो गई कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग कि आपके जो परसेंटेज होते हैं, लाइक वो आपके बीटेक में ओवरऑल 60% के ऊपर होने चाहिए थे, आपके हाई स्कूल और इंटर में भी 60% के ऊपर होने चाहिए थे. अगर एज की बात करते हैं, तो एज में आपका 18 से 28 के बीच में होना चाहिए. वो बाकी आप सब लोग होंगे ही, क्योंकि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो इसी एज ग्रुप के बीच में आओगे, तो उसकी इश्यू नहीं होती है. और अगर आप कहोगे कि आप फ्रेशर होने चाहिए, तो उसमें एक चीज ये होती है कि आप फ्रेशर से लेके 2 साल के एक्सपीरियंस तक का आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. सो ये कुछ बेसिक से एक एलिजिबिलिटी है. और एक और होता है, अगर आपकी बैकलॉग्स हैं, एनक्यूटी देते समय आपके पास बैकलॉग्स होंगी तो कोई इशू नहीं है, बट जब आप निंजा दे रहे हो तो आपकी एक एक्टिव बैकलॉग होनी चाहिए सिर्फ. और वो भी जब आप अगर आप टीसीएस निंजा के लिए सेलेक्ट हो जाते हो और आप जब ज्वाइनिंग डेट होगी, तो उस समय तक वो बैकलॉग भी क्लियर हो जानी चाहिए, वरना वो आपका ऑफर लेटर कैंसिल कर सकते हैं. Okay, sir. For both it is same for both. या फॉर बोथ इज सेम. Okay, sir. Okay, sir. Sir, and the next And thing one is thing, this. and one thing I also like Yes, to sir. mention, जब आप एनक्यूटी देते हो तो बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज होती हैं जो टीसीएस के साथ हायर करती हैं. तो अब क्या होता है कि सिर्फ एनक्यूटी देने से ही क्वालिफाई नहीं हो जाता इंसान दूसरी कंपनी के लिए. हर कंपनी के अलग भी क्राइटेरियाज होते हैं. जैसे अगर आप बजाज एयरलाइंस की बात करो, वो भी टीसीएस से हायर करती है. तो आपने एनक्यूटी दिया, वो तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उनका पहला राउंड तो निकल गया. बट अब बजाज एयरलाइंस ने जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स दी होंगी, वो हर कंपनी की अलग होती है, तो आपको उसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा इफ यू वांटेड टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. Okay, sir. Got it, sir. Got it. And the next question, it's about it's the syllabus of the TCS. So, Sunny Bhaiya, I would like you to recommend about something about this, the huge and the vast syllabus. Yes. So first of all, I would like to go for NQT pattern syllabus. देखिए, एनक्यूटी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग हम लोगों के प्रोफाइल्स होती हैं. जैसे कि अगर आप आईटी में प्रेफर करते हैं, मैकेनिकल में प्रेफर करते हैं, तो एनक्यूटी अलग अलग कंपनीज में हम लोगों को इंटरव्यू प्रोवाइड करवाता है. और एनक्यूटी की फीस है. एनक्यूटी हम लोग कितनी भी बार दे सकते हैं, फीस पे करके फिर हम लोग एनक्यूटी दे सकते हैं, अगली बार नेक्स्ट बार फिर फीस पे करके एनक्यूटी दे सकते हैं. लेकिन तो अगर हम एनक्यूटी पैटर्न की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हमारे होते हैं सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं. अगर हम आईटी की बात करें, और सब हम लोग यहाँ पे मेजरली आईटी के लोग हैं. इज इट और नॉट? Yes, sir. All are from majority are from IT and CS. यस. सो अगर हमारे सेक्शंस होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, वर्बल एबिलिटी होती है, और हमारा रीजनिंग एबिलिटी होती है. न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारे क्वांट्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं. 26 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट्स का टाइम होता है.
और वर्बल एबिलिटी में हम लोग के इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हम लोगों का नाउन, वर्ब और ये सब पूछा जाता है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि जैसे वर्ब है, नाउन है, और भी एडवर्ब, एडजेक्टिव से रिलेटेड हम लोग के होते हैं। तो इसमें हम लोग के 24 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है। और रीजनिंग एबिलिटी में, रीजनिंग हम लोग जानते हैं कि 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 50 मिनट्स का टाइम होता है। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन आता है प्रोग्रामिंग लॉजिक का, जिसमें कि सी, सी प्लस प्लस या जावा, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेजरली सी और सी प्लस प्लस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और इनमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक में 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्या होता है, गेस द आउटपुट हो सकता है, या फिर हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द आउटपुट। तो उसमें होता है हमारा 15 मिनट्स का टाइम होता है, 10 क्वेश्चंस होते हैं। फिर हमारा एक कोडिंग क्वेश्चन, 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं इसमें। एक कोडिंग क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं, एक कोडिंग क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स मिलते हैं। जिसके लिए 30 मिनट्स मिलते हैं, हो सकता है थोड़ा टफ हो, और 15 मिनट्स वाला थोड़ा इजी होता है, लेकिन ज्यादातर दोनों ही टफ नहीं होते हैं, थोड़े बहुत इजी होते हैं। और फिर होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसके लिए 30 मिनट्स का टाइम होता है। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोगों को पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो लोग टेस्ट करते हैं, जैसे कि जैसे एचआर क्वेश्चंस इंटरव्यू में होते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, आर यू लॉयल टू द कंपनी और नॉट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पर्सनैलिटी को जज करते हैं वो लोग। और जहां तक बात रही कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, इसकी आपको बस फीस पे करनी होती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ एनक्यूटी की, और हर क्वेश्चन करना इसमें मैंडेटरी है, और आप पिछले क्वेश्चन में ट्राइवर्स नहीं कर सकते। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, तो आप अगर चाहते हैं कि रिव्यू करना पिछला क्वेश्चन, तो आप इसको रिव्यू नहीं कर सकते। ये इसमें एक है। अब हम लोग बात करते हैं कि, तो आप लोगों को समझ में आ गया पैटर्न क्या है एनक्यूटी का? यस सर, यस सर। तो हम लोग अब निंजा की बात करते हैं। पैटर्न निंजा का भी लगभग सेम ही है, क्योंकि निंजा सिर्फ आईटी प्रोफाइल के लिए उठाता है। निंजा अगर आप निंजा में अपीयर करते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी होनी चाहिए। और उसके लिए फिर आपको, अगर निंजा में क्वालिफाई करते हैं, तो सिर्फ आईटी के बंदे, क्योंकि वो आईटी में ही उनको काम कराना है। तो पैटर्न लगभग सेम रहता है। इसमें भी 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स का टाइम होता है दोनों क्वेश्चंस के लिए। और 10 क्वेश्चंस होते हैं सी प्लस प्लस और सी से रिलेटेड, और जावा से भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जावा से नहीं होंगे, जावा से भी हो सकते हैं, क्योंकि पैटर्न उनका हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता है लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग भी। तो इसमें हम लोगों के 10 क्वेश्चंस ही होते हैं, और टाइमिंग होती है 30 मिनट्स की। तो इसमें हम 15 मिनट्स की टाइमिंग होती है, सॉरी। फिर इसको हम लोग को करना होता है उसमें। और वही न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी होती है। टाइमिंग सेम है दोनों की, जैसा मैंने एनक्यूटी में बताया। तो ये सब कुछ है, और इसको हम लोग सिर्फ एक बार दे सकते हैं निंजा एग्जाम को। और इसमें भी ये है कंडीशन कि अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ट्राइवर्स नहीं कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है। और दूसरी बात, ये नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है इसमें। तो ये एक प्लस पॉइंट है, नो नेगेटिव मार्किंग। दोनों पेपर्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके सर। सर, जो आपने अभी बताया, जो वर्बल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग, सर तो इसके लेवल्स क्या होते हैं, इसके क्वेश्चंस के लेवल्स? इजी, मीडियम और हाई? कुछ क्वेश्चंस इसमें होते हैं बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं मीडियम, और हाई लेवल के क्वेश्चन ज्यादा इसमें नहीं आते हैं। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन वो लोग रख देते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर तो नहीं आता ऐसा कुछ। सर मतलब सारे ऐसे सारे सेक्शंस में भी यही होता है? सारे सेक्शन में। ओके सर। Sir, so I can say that the platforms are different, but the approaches are same for both TCS and Yes, QT yes. and TCS Ninja. Yes, right. The platforms are also same. They both conduct the test in TCS Ion, as others sir mentioned. Okay, They sir. both conduct there in TCS Ion. Okay, sir. Okay, sir. आदर्श सर, एक क्वेश्चन मुझे आपसे है उसके एलिजिबिलिटी से लेके। जैसे मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया है टीसीएस के बारे में, और मैंने पूछा भी था टीसीएस का फॉर्म भरा है या नहीं, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरी फील्ड का नहीं है, या मैं मैकेनिकल का हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, तो मैं नहीं भरूंगा। तो ऐसा कुछ होता है इसमें, या फिर कोई भी भर सकता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। आप बीटेक, आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक होनी चाहिए। पहले कुछ टाइम पहले ये तक होता था ये कि आप सीएस, आईटी और ईसीई तक ले सकते थे। बट अब क्या है कि आप बस बीटेक हो, आप क्वालिफाई कर सकते हैं उसके लिए, उसकी कोई इशू नहीं होता है। ओके सर। ओके सर। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीसीएस की डेट्स बहुत पास में है, तो सर इतने शॉर्ट पीरियड में इसकी प्रिपरेशंस कैसे करें ज्यादा से ज्यादा? सर ये क्वेश्चंस आप दोनों से, आदर्श भैया, सनी भैया, दोनों से। ओके, सो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखो ऐसी होती है कि सबकी अलग होती है। यस सर। ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूं,
तो देखिए कितनी सारी चीजें होती है इसके अंदर। अगर आप जैसे सनी सर ने बताया कि टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल में कुछ फर्क होता है। आप तुम जैसे अंशुल पूछ रहे थे कि लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, ठीक है, तो लेवल इजी मीडियम हार्ड, बट आप निंजा का अगर देखोगे तो इजी से मीडियम तक जाएंगे वो लोग, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाते हैं निंजा में। बट जब हम लोगों ने डिजिटल का दिया था तो वी सी अ ह्यूज डिफरेंस इन द क्वेश्चंस कि लेवल बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो टीसीएस अगर डिजिटल प्रोफाइल के लिए अगर मान लो आप लोग सेलेक्ट हुए हो, देन यू हैव टू वर्क वेरी रियली हार्ड कि आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग भी वेरी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके क्वेश्चंस, अगर आपकी अब बात करता हूँ एप्टीट्यूड रीजनिंग की, जो बीटेक में जो बच्चे होते हैं उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, सब लोग नहीं पढ़ते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग को, वो फोर्थ ईयर में आके पढ़ते हैं। बट होता क्या है कि आप जब एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ते हो, वो एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक महीने के अंदर उसको पढ़ के खत्म कर दोगे। उसके लिए आपको एक एक लिमिटेड अमाउंट और या एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए ही चाहिए जिसमें आपको देना होगा उसको। तो उसमें होता क्या है कि एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ने के लिए आपका कोई एक हार्ड एंड सो रूल नहीं है कि आप ऐसे करो ऐसे करो हो जाएगा। बट व्हाट आई यूज दैट स्ट्रेटजी इज दैट कि सबसे पहले तो ये पता करो कि उसका सिलेबस क्या क्या है, एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर क्या क्या सिलेबस आ रहा है। यू डोंट हैव टू गो विद लाइक कि आपने गूगल कर लिया टीसीएस एप्टीट्यूड रीजनिंग क्वेश्चंस आप लगाने बैठ गए, इस तरह मत करिए। आप सबसे पहले देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक उठाइए, उसके 10 सवाल सॉल्व करिए। जब आपको सारे कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपने लिया वर्क फोर्स मैनेजमेंट का एक सवाल लिया है, ठीक है, तो आप उसको अगर सॉल्व करते जा रहे हो तो सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व करो एक दिन में। नेक्स्ट दिन अगला टॉपिक उठाओ प्रोबेबिलिटी, उसको सॉल्व करो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पेपर उठा लिया, आप उसको सॉल्व करने गए, तो आपने पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का लगाया, उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लगाया वो लेबर का लगाया, तो आपको लेबर का कॉन्सेप्ट पता चला। फिर तीसरा किसी और का, चौथा किसी और का, तब तक प्रोबेबिलिटी वाला जो एक सॉल्यूशन आप जाने तो वो भी भूल चुके होंगे। तो इससे बढ़िया है इससे बढ़िया है कि आप एक टॉपिक सेलेक्ट करिए और एक टॉपिक को पूरा एंड टू एंड पढ़िए। अगर आपके कुछ टॉपिक मिस भी हो जाएंगे तो उससे आपको कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि आपने जो टॉपिक्स पढ़े वो आप बहुत ही स्ट्रांगली पढ़ के गए हो। ऐसा और टीसीएस निंजा की एक खासियत भी है कि वो सारे क्वेश्चन मिक्स करके देता है। ऐसा नहीं होता है कि आप प्रोबेबिलिटी से बहुत ज्यादा आ गया और अगर आप स्टैट्स पढ़ के कोई स्टैट्स से कुछ आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। सारे क्वेश्चन मिक्स अप। सर तो जो पैटर्न होता है उसमें मतलब जो सेक्शंस होते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं कि ये पर्टिकुलर इसी फील्ड का, पर्टिकुलर एप्टीट्यूड का, पर्टिकुलर रीजनिंग का, पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग का, या पूरा मिक्स आता है? देखो होता क्या है, 3 सेक्शन मेजर सेक्शंस होते हैं। एक होता है इंग्लिश का, दूसरा होता है तुम्हारा एप्टीट्यूड रीजनिंग का, तीसरा होता है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन तुम्हारा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि उसमें तुमको बार बार उस सेक्शन से बाहर आओगे, फिर तुमको फिर कुछ फॉर्म्स होंगे उन पे तुमको अलाउ करना होगा, फिर तुमको एंटर करना होगा। तो वो 3 सेक्शन तुमको तो एक मेजर डिवीजन दिखेगा वहां पे, बाकी सेक्शंस में तुमको इतना मेजर डिवीजन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश की बात आ गई, तो इंग्लिश में क्या होता है कि तुम्हारे अनसीन पैसेजेस आते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स आते हैं, और इस वर्ड को क्या एंटोनिम होगा वो बताना होगा। तो आप दे आर आई थिंक इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स कि आप याद ही नहीं कर सकते, आपकी वोकैबुलरी चाहे जितनी स्ट्रांग है। तो आपको फोकस इसके ऊपर करना होगा, अनसीन पैसेजेस के ऊपर, कि आप कितनी जल्दी अनसीन पैसेजेस को पढ़ के ग्रैब कर पा रहे हो कि इसके आंसर्स क्या हैं। ओके सर। तो अनसीन पैसेजेस आपको हेल्प करेगा इंग्लिश सेक्शन को कट आउट करने के लिए। फिर अगर आप आते हो एप्टीट्यूड रीजनिंग में, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग में आप सारे भले नहीं कवर कर पा रहे हो, लेकिन जितने कवर कर रहे हो उतने अच्छे से कवर करो और उसको दो, तो वो भी निकल जाता है। आप निंजा प्रोफाइल के लिए अगर से तैयार कर रहे हो तो आप ज्यादा हार्ड लेवल तक मत जाओ, मीडियम लेवल तक भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपका इजीली क्लियर होगा, बहुत इजीली क्लियर होगा निंजा। फिर आ जाता है अगर प्रोग्रामिंग की बात, तो प्रोग्रामिंग का ऐसा होता है कि आप जानते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, और बहुत लोग इस तरह कर भी रहे होंगे कि जिसमें कुछ लोग बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, जिसमें वो लोग प्राइम का प्रोग्राम बना रहे होंगे, फैब्लो की सीरीज बना रहे होंगे, और कुछ लोग एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स पढ़ रहे होंगे। बट टीसीएस निंजा का एक चीज होती है कि आपको उसमें बेसिक प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए। जब मैंने टीसीएस निंजा दिया था तो मुझे प्रोग्राम आया था फेबोनाची नंबर का, और फेबोनाची नंबर फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा होगा। यस सर। तो टीसीएस निंजा का इतना कोडिंग के मामले में इतना हाई क्वेश्चंस नहीं होते हैं जो आप सोचो कि मैं एल्गोरिथम सोच के जाऊंगा डीएस का सवाल आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला है उसमें। तो आप कोडिंग के ऊपर एक मिनिमम ध्यान क्या, इतना ध्यान दीजिए कि आपको कोडिंग के कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सारे पता ही होने चाहिए। बट आप इस समय फोकस किसके ऊपर करो, अगर अब आपका पेपर होने वाला है तो रीजनिंग एप्टीट्यूड के ऊपर आप लग जाओ,
उसको कोप अप करने की कोशिश करो कि वो बहुत ही एक मेजर पार्ट प्ले करता है टीसीएस निंजा को पास करने के लिए। ओके सनी सर। सर आपके क्या व्यूज है इस पे? सनी भाई आपके व्यूज, आपकी स्ट्रेटेजीज। व्यूज और स्ट्रेटजी सेम ही है, जैसा कि आदर्श सर ने बताया है कि देखो क्या होता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, जैसे कि किसी को एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तो अब जिसको पसंद है तो उसको पसंद है, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा, वो करने बैठ जाएगा। नहीं अगर क्वेश्चन होगा सही से तो वो क्वेश्चन छोड़ के दूसरा लगाएगा, फिर उस क्वेश्चन पे बाद में फोकस करेगा। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी कि ये क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। कि अब जैसे कि एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करें तो क्या होता है कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग ऐसी चीज है जो आपकी लॉजिकल एबिलिटी को बढ़ाती है, और प्रोग्रामिंग भी ऐसी चीज है जो हमारी लॉजिकल एबिलिटी को बढ़ाती है। एम आई राइट? यस सर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करते हैं, एप्टीट्यूड में हमारा क्वांट्स आ जाता है, एप्टीट्यूड आ जाता है, रीजनिंग में हमारा लॉजिकल एबिलिटी चेक होती है। तो इसके लिए बहुत सी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनलाइन बहुत सी यूट्यूब चैनल्स हैं, फ्रेशर्स वर्ड है, प्रेप इंस्टा है, ये सब हम लोगों को क्वेश्चंस भी देते हैं प्रीवियस ईयर्स के। आप लोग नोट करिए कौन कौन से चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रेशर्स वर्ड है, प्रेप इंस्टा है, और फेस प्रेप है। ये सब हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और क्या उनका सिलेबस था। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए, क्या सिलेबस है इसका, कि नंबर सीरीज से कितना आता है, प्रोबेबिलिटी से क्या आ रहा है, और इससे क्या आ रहा है। उनके पहले सिलेबस निकाल के फिर उनके क्वेश्चंस निकालिए, फिर धीरे धीरे सॉल्व करिए उन क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद आगे आगे चीजें करिए, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग तो सब लोग करते ही होंगे, सीएसआईटी है तो सब लोग प्रोग्रामिंग करते होंगे। तो प्रोग्रामिंग लॉजिक पे ध्यान दीजिए कि जैसे कि हम लोग गेस द आउटपुट वाले क्वेश्चंस कैसे करें, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करें कि इसका मेन आउटपुट क्या होगा। देखो नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो जी ऐसा सर। नहीं है कि आपको आंसर ऐसे ही लगा देने हैं, आंसर तब भी सोच के ही लगाना है। तो इसमें ये है। और जहां तक बात रही प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की, जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस दो आएंगे, हम लोगों के समय प्रोग्रामिंग क्वेश्चन एक ही आया था, और एक आया था तो एक करना कंपलसरी है। अब दो आ रहे हैं तो दो में से एक अगर आपका हो जाता है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन अगर दोनों हो जाते हैं तो एक प्लस पॉइंट होता है, पहले आपको मौका मिलता है, ये फायदा होता है। तो अब होता क्या है, मेरे समय जो क्वेश्चन आया था वो आया था 4 से 40 के बीच में प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो ये देखा जाए तो एक सिंपल क्वेश्चन ही है, क्योंकि हम लोग यस फर्स्ट ईयर में भी ये किए थे, सेकंड ईयर में भी ये कर चुके हैं सब। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो अब है ये कि डिजिटल में जाते जाते थोड़ा क्वेश्चंस हार्ड हो जाते हैं, बाकी निंजा में क्वेश्चंस थोड़े लाइट ही रहते हैं, इजी रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो एवरेज सही रहता है। आप मतलब अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आप कर लेंगे, बहुत अच्छा रहता है। सर, जो जो कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं उसकी लैंग्वेजेस ये तीन, सीपीपी, सी एंड जावा, या फिर और भी इसमें ले सकते हैं? नहीं, इसमें सी, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये चार Only. लैंग्वेजेस रहती हैं। Okay, sir. And sir, the next question is again from both of you, that what is the best choice of yours among TCS NQT and TCS Ninja? क्या अंशुल, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Sir, what is if you have to choose among the two, TCS NQT and TCS Ninja, what would be your best choice? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। टीसीएस एनक्यूटी और टीसीएस निंजा के बीच में आप लोग ये मत सोचोगे क्या चॉइस तुमको लेना बेटर होगा। टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल के बीच में चॉइस सोचो, क्योंकि निंजा तो आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आप टीसीएस के थ्रू हायर होना चाहते हो। Okay, ठीक sir. है। और टीसीएस, अगर आप मेनली टीसीएस में वर्क करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ दो प्रोफाइल है। एनक्यूटी की कोई प्रोफाइल नहीं होती है टीसीएस में, निंजा प्रोफाइल है और डिजिटल प्रोफाइल है। तो यू हैव टू चूज बिटवीन दीज टू प्रोफाइल्स। सो डिजिटल में क्या होता है, इफ यू वांटेड टू वर्क ऑन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड इफ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग आल्सो, देन यू हैव टू गो फॉर दिस टीसीएस डिजिटल। एंड इफ यू थिंक कि हाँ मुझे बेसिक्स चीजें पता है, मुझे इतना कोडिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, देन यू विल स्टिक टू टीसीएस निंजा। Okay, sir. Sunny bhai, your views on that? ये सेम व्यूज है आज आदर्श सर सेड कि देखो एनक्यूटी और निंजा तो चीजें बहुत ही अलग अलग है। एनक्यूटी निंजा में डिफरेंस अगर हम लोग बात करते हैं, एनक्यूटी निंजा में डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनक्यूटी एक क्वालिफायर टेस्ट है जो टीसीएस कराता है किसी भी कंपनी में प्लेस करवाने के लिए, जैसे कि एमकेट और गोक्यूब्स करवाते हैं, ई लिटमस करवाता है। निंजा क्या है कि टीसीएस अपनी ही कंपनी में लेने के लिए करवाता है। तो टीसीएस निंजा और डिजिटल में अगर डिफरेंस होना चाहिए तो ये सही रहेगा। तो टीसीएस निंजा में क्या है कि वैसे बेस्ट चॉइस तो टीसीएस डिजिटली रहेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका पैकेज भी अच्छा है और उसमें जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी।
तो बेस्ट चॉइस तो डिजिटल ही है। जैसे कि हम लोग ने अभी बात की थी डिजिटल और निंजा का, हम लोग ने डिफरेंस दिया भी है आपको, तो अगर आप लोग अभी अनक्लियर हैं तो फिर से हम लोग डिफरेंस दे सकते हैं क्या? इज इट क्लियर? yes sir, it's clear. तो यही डिफरेंस है दोनों में। तो बेस्ट चॉइस तो डिजिटल ही रहेगी ऑफ कोर्स, बेस्ट चॉइस, क्योंकि उसका पैकेज ज्यादा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो बेस्ट चॉइस डिजिटल है। ओके सर। सनी भैया, आपने एक चीज बताया था ऊपर जब मैंने क्वेश्चंस किया था, तो उसमें जब लास्ट में आप गए थे इसको क्वालिफाई करने के बाद जो इंटरव्यू प्रिपरेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या मतलब? सर अगर टीसीएस एनक्यूटी या टीसीएस निंजा क्वालिफाई हो गया उसके बाद। अच्छा अच्छा, जी तो सर। जैसे अगर मान लीजिए निंजा आपका क्वालिफाई हुआ, तो उसके बाद क्या है, इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात बारी आती है। तो अब जैसे कि जो हम लोगों ने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है, तो हमें वो अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम लेके जा रहे हैं, एक पेपर लेके जा रहे हैं, हमने सामने वाले को एक पेपर दिया कि मुझे ये आता है, इसमें से आप पूछिए, तो वो तो मुझे आना ही चाहिए जो मैंने दिया है उनको, इसमें से पूछिए आप, ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। और फिर क्या है कि हमें अपने सब्जेक्ट्स आने चाहिए थोड़े बहुत, कि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ वो पूछते जरूर हैं, क्योंकि मेरे से भी उन्होंने सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें भी पूछी थी, और जो मैंने उनको अपना सीवी दिया था उसमें से भी उन्होंने पूछा था बहुत चीजें। ज्यादातर वो सीवी से ही पूछते हैं, क्योंकि जो मैंने उनको दिया है वो उन्हीं से ज्यादातर पूछते हैं। सर सब्जेक्ट्स लाइक कोर सब्जेक्ट्स ऑफ सीएससी। यस, कोर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और कभी कभी वो टाइम पास करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी मुझसे पूछ ली थी उन्होंने। तो ये भी था, मुझसे पूछा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंटर में कौन सा था, तो मैंने बताया सर मेरा केमिस्ट्री था, फिजिक्स भी था। तो उन्होंने फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, तो नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे थे। और फिर बाद में कोर सब्जेक्ट्स पे भी पूछे थे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स पे पूछा था, एल्गोरिथम्स पे पूछा था, और डेटाबेस पे पूछा था। डेटाबेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा फोकस रहता है कंपनीज का, क्योंकि डेटाबेस पे ही काम ज्यादातर करवाया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी काम होता है, लेकिन एज अ कोई प्रैक्टिकल आपको सिनेरियो दिखेगा नहीं जहाँ डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, लेकिन डेटाबेसेस का ऐसा प्रैक्टिकल सिनेरियो बहुत देखते हैं कि जहाँ पे डेटाबेसेस के ज्यादा काम होते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। ओके सर। सो यहाँ पे हम लोग के साथ एक और सुपर सीनियर जुड़े हैं, नातेश्वरी प्रसाद वर्मा सर। इनका इंटरव्यू प्रिपरेशन के मामले में जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है सर, तो इनसे भी व्यूज लेते हैं सर। नातेश्वरी सर, आप अपने व्यूज दीजिए इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके। यार लाइक सनी सर, आदर्श सर, आप लोग लाइक काफी बता चुके हैं चीजें, काफी सही तरीके से जितना बताया, आई थिंक इतना इनफ होता है एज अ फ्रेशर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, लाइक एज अ एमएनसी फॉर लाइक टीसीएस, बिग फोर, कॉग्निजेंट, समथिंग लाइक दैट। इतना ही होता है, ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मतलब लाइक एज अ फ्रेशर जॉब लेना टफ भी है, बहुत इजी भी है। इजी इसलिए है क्योंकि आपके लिए पास बहुत ही लिमिटेड कंटेंट उस टाइम आपके लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड प्रोग्रामिंग। बट एज अ प्रोफेशनल लाइक एक्सपीरियंस टाइम आपसे लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक एनी एक्सपर्टाइज इन फ्रेमवर्क, एनी एंड एक्सपर्टाइज इन डेटाबेस, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारी चीजें होती हैं। सो एज अ फ्रेशर मतलब बहुत अच्छा लाइक कह सकते हैं कि चांस होता है हमारे पास जॉब लेने का, और बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम सिलेबस है। तो आई थिंक इतना ही ना, जितना सनी सर, अदर सर आप लोग को बताया है, इतना ही फॉलो करिए। आई थिंक जॉब के लिए बेटर है, इतना ही जरूरत है। मातेश्वरी सर ने बहुत बढ़िया एक टॉपिक यहाँ पे उठाया है कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस में डिफरेंस उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में डिफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि फ्रेशर की तरह आपको जॉब लेना बहुत ही इजी हो जाता है, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आपने अगर अपनी सीवी में पाइथन लिखा है या सी लिखा है, सो दे डोंट डिग टू डीप कि वो बिल्कुल अंदर जाते ही जा रहे हैं आपसे पूछने। दे विल आस्क यू द बेसिक क्वेश्चंस लाइक आपके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, एरेज क्या होते हैं। बट अगर आप यही सोचोगे, आपने अगर अपनी सीवी में पाइथन लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपने पाइथन क्या है सिर्फ यूट्यूब से पढ़ ली है और आपने अभी तक उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया नहीं है, तो एक इंटरव्यू की खासियत होती है वो जान जाता है कि आपको कहाँ पे आप फंसोगे। पता नहीं उनके अंदर ऐसी क्या शक्तियां होती हैं, क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो वो ऐसा एक बहुत बेसिक सा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको बेसिक ही दिमाग लगाना होगा, बट यू विल थिंक कि यार ये तो बहुत कठिन सवाल दे दिया है, आई कैन नॉट हैंडल इट, आई कैन नॉट सॉल्व इट। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अगर मैं आपको अपने इंटरव्यू का अगर मैं बताऊं, तो देयर आर बेसिकली 3 राउंड्स दैट वी हैव टू गिव आफ्टर द NQT or Ninja test if you are qualified in that. So first one is the TR round, that is called technical round. Second one is called MR round, that is managerial round. Third one is the HR round. तो सबसे पहले क्या होता है, जो TR round होता है, that is the main round that you have to qualify.
and that is one of the toughest round that you have to qualify. So निंजा में जब आप जाते हो तो आपकी रिज्यूमे मेंटेन होती है, एंड आप में उसने आपने जितनी भी लैंग्वेज कभी भी पढ़ी होंगी वो आप कुछ लोग लिख देते हैं। जैसे उसने सी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, उसने सी लिख दी है, सी प्लस प्लस में थोड़े दिन पढ़ा, सी प्लस प्लस भी लिख दी है, जावा थोड़ी बहुत आती है उसने वो भी लिख दी है, और पाइथन पे काम कर रहा है उसने पाइथन सबसे पहले लिख दी है। ठीक है, बट होता क्या है कि जब वो इतनी सारी लैंग्वेजेस देखते हैं ना तो वो खुद समझ जाते हैं इंटरव्यूअर कि ये लड़का बस हल्का हल्का ही पढ़ के आया है और उसमें वो चीज नहीं है। तो ट्राई टू मेक योर सीवी एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल, और ज्यादा चीजें लिखने की कोशिश मत करो कि मैं ये भी टेक्नोलॉजी लिख दूं, मैं वो भी टेक्नोलॉजी लिख दूं, मुझे ये भी आता है थोड़ा बहुत, ये सब मत करो। इफ यू आर राइटिंग ओनली 2 टेक्नोलॉजीज, सो बी शार्प एट दैट। आपको 3-4 टेक्नोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है, उनको एक ही टेक्नोलॉजी पे काम कराना है, तब भी उनको एक ज्यादा दे रहे हो कि मुझे एक और आती है। Yes, sir. ठीक है, तो उसमें आपको 3-4 टेक्नोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है। और जो भी जैसे सनी सर ने बताया, जो भी पूछा जाएगा आपकी सीवी से ही पूछा जाएगा। ठीक है, बट एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एमएनसी के इंटरव्यू के लिए, दैट इज योर नॉन वर्बल एटीट्यूड। ठीक है, आप किस तरह बैठ रहे हो, किस तरह उनसे बात कर रहे हो, कितना शिविर कर रहे हो। तो जब मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे साथ एक और कैंडिडेट था, तो वो क्या हो रहा था कि वो जब बैठ रहा था तो शिविर कर रहा था। ठीक है, तो आप जैसे घबरा जाते हैं, पहली बार आप लोग एचआर को देखोगे, टीआर को देखोगे, और इतनी बड़ी कंपनी है, किसी किसी की ड्रीम कंपनी भी होगी टीसीएस। ठीक है, तो घबरा जाते हैं, तो वहां पे आप शिविर करने लगते हैं, तो जो टीआर होता है वो पहले जान जाते हैं कि ये इसका कॉन्फिडेंस बहुत ही वीक है। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ पूछा नहीं तब भी शिविर कर रहा है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ अपनी नॉन वर्बलिटी, ठीक है, आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है, इन सब पे बहुत वर्क करना चाहिए। मीन्स आप बात कर रहे हो तो यू मस्ट लुक कॉन्फिडेंट, कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये थोड़ा घबरा के मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, आप एचआर को बोल रहे हो चीजें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोले। आप टीआर को अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करिए। और एक और चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब एचआर जैसे किसी ने कुछ पूछा कि मान लीजिए कि व्हाट आर डेटा टाइप्स, तो आपने बता दिया इंट, स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसे करके बोल दिया आपने, लॉन्ग, फ्लोट। ठीक है, दिस इज नॉट द आंसर। ट्राई टू बी इलैबोरेटिव। वो आपको उस तरह उसको समझाना है जैसे वो लेमैन है, उसको पता ही नहीं है। Okay, ठीक sir. है, आप वर्ड टू वर्ड आप ना बताना कि आपने बता दिया इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट यही होते हैं सर। This is not the way. You have to elaborate it. What is the definition of that data type, and why we use data type? What are the benefits of data type? What are the differences between these data types? So try to be elaborative in your answers. So इससे होता क्या है कि आप जब बढ़ाओगे, आप कोई भी आंसर को स्ट्रेच करोगे तो आपका फायदे क्या होंगे? 2 फायदे होते हैं यहाँ पे बहुत बड़े, कि आप जब उससे बात करो, उन्होंने तो आपको एक टाइम स्पैन देके रखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपका आधा घंटा इंटरव्यू ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जब आप जाओगे देखने। ठीक है, तो वो स्ट्रेच नहीं कर सकते। जब आप ही इलैबोरेट करोगे उनके, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टाइम भी उनके पास कम हो जाएगा। आपने एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट स्ट्रेच किया, फिर दूसरा पूछेंगे, फिर वो आप स्ट्रेच करके बताओगे, तो इंटरव्यू को ये भी पता है मैं जो पूछ रहा हूँ उसको पूरी नॉलेज है उसकी, तो वो ज्यादा सवाल भी आपसे नहीं पूछेगा फिर। तो ये स्ट्रेटेजी अगर लेके चलोगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप जितना कम बताओगे उतने ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। Okay, sir. और रही बात एचआर राउंड की, तो एचआर राउंड में क्या होता है कि एचआर राउंड इतना कठिन राउंड नहीं होता है, इफ यू आर गुड विद द इंग्लिश एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। ओके, सो एचआर राउंड बेसिकली आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखने के लिए होता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो। बाकी एचआर राउंड में कुछ नहीं होता है। जब मेरा एचआर राउंड हुआ था तो उसने मुझसे पूछा कि यू आर सिटिंग हियर फ्रॉम द मॉर्निंग, आर यू टायर्ड? सो आई सेड नो सर, आई एम वेरी मच फाइन। तो कह रहा ओके, सो गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स, आई हैव गिवन हिज डॉक्यूमेंट्स ऑल। सो he asked that, are you comfortable with the TCS? हमने कहा yes sir. So कह रहा okay, this is the my HR round, nothing else. Okay. So if you qualify the TR and MR round, then you don't have to fear for the HR round. एक क्वेश्चन आया है सर इंग्लिश लैंग्वेज, देखो इंग्लिश लैंग्वेज का क्या होता है, टीआर राउंड में आप हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप पूरी हिंदी में मत आइएगा। Okay, sir. If you're going for MR and if you're going for HR round, then English really matters. Sir, हाँ सर कंटिन्यू करिए आप। सो इंग्लिश का आपको एचआर राउंड में तो बहुत ही, क्योंकि एचआर सिर्फ आपको यही देखने के लिए है कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। जरूरी नहीं कि आपके अंदर फ्लुएंसी हो,
that you are speaking very fast and you are speaking very good. It is not necessary. If you are able to convey your views, what you wanted to say, then it is okay. They don't want the fluency that you must have a British accent or you must have an American accent. They don't want that. Just Okay. communication skills. Just if they are saying if you are able to communicate and if you are able to convey your views on a Mhm. particular subject, then it is okay. Yes, sir. Okay, sir. एंड एमआर राउंड बेसिकली मैनेजरियल राउंड होता है जिसमें कि आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट का सीन होता है, प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन होता है कि आप जो भी फोर्थ में प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि आपका इंटरव्यू क्या होता है कि आपका इंटरव्यू हो जाता है मे बी अगस्त सितंबर में आपका इंटरव्यू हो जाता है। आप शायद लेट हुआ है, स्ट्रेच हुआ, हम लोग ने अगस्त सितंबर में अपना इंटरव्यू दिया था। तो वहां पे क्या होता है कि आपसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग ने जो जो फाइनल ईयर में इस समय होंगे उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मन में तो सोच लिया होगा कि क्या बनाना है। ठीक है, वही मैंने भी सोच लिया था, तो मैंने वहां बता दिया मुझे ये बनाना है। सो दे सेड कैन यू प्लीज राइट अ एल्गो फॉर इट। ओके, सो Okay, sir. मैंने तो बस दिमाग में सोचा हुआ था वो प्रोजेक्ट, मेरे पास नई एल्गो रेडी थी, नहीं कुछ रेडी उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। बट मैंने वहां पे उनको एल्गो क्रिएट करके दिखाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर प्रोजेक्ट कोई बता रहे हो तो वो आपसे एल्गो भी लिखवा सकते हैं उसका, या कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल का कोड भी लिखवा सकते हैं। हम्म, तो आपको अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहना होगा और अपने प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स, मान लीजिए आप एक वेबसाइट, आपने प्रोजेक्ट सोचा है कि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, होटल मैनेजमेंट की वेबसाइट बना रहा हूँ। तो सो पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये उठेगा कि बेनिफिट क्या है इस वेबसाइट के। बहुत सारे होटल मैनेजमेंट की वेबसाइट्स हैं, व्हाट यू हैव एडेड द न्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। और फिर वो ये भी पूछेंगे कॉन्स बताओ इसके, कि इस प्रोडक्ट के कॉन्स क्या है, क्यों इससे कोई प्रोडक्ट आगे जा सकता है, इसमें क्या क्या वर्क और किया जा सकता है। सो ये कुछ ऐसे सवाल है जिनको आपको अपने दिमाग में भर के ही जाना है कि मुझे इनके क्या आंसर देने हैं। प्रोजेक्ट्स पे आप बहुत ही ज्यादा अपने कंसिडर करिए कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एचआर अगर टीआर अगर फंसाने पे आ गया तो बहुत ही ज्यादा फंसाएगा। जी सर। सनी सर, आपको क्या कहना है प्रोजेक्ट के ऊपर? प्रोजेक्ट के ऊपर जैसा कि आपने कहा आदर्श सर, वही कि प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है पूरी तरीके से उसी को लिखिए आप। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट किसी और ने बनाया आपने उसको शो किया, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ना कि जिसने बनाया उससे। इसका मतलब आप ही को बनाना है, क्वेश्चंस आप ही से पूछे जाएंगे वो। और प्रोजेक्ट ऐसा रहना चाहिए, प्रोजेक्ट आपका जो रहना चाहिए वो जैसे कि यूजेबल हो प्रोजेक्ट ज्यादातर। अगर यूजेबल ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट आपने बनाया है तो यूजेबल तो होगा ही होगा। तो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसके आपको प्रोज एंड कॉन्स मालूम हो, क्या उससे फायदे हैं क्या उससे नुकसान है ये भी आपको मालूम हो। तो प्रोजेक्ट के बारे में यही है। और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था सर व्हाट इज द, प्रशांत सिंह ने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनक्यूटी एंड निंजा। तो वो हम लोग बता चुके हैं। वो डिस्कस प्रशांत, वो डिस्कस हो चुका है। सो प्रशांत, आर यू क्लियर? यस लिख दीजिए अगर क्लियर है आप तो। और दूसरा क्वेश्चन ऋषभ मिश्रा ने, सर डू आई हैव टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू आफ्टर पासिंग द एग्जाम? हाँ बिल्कुल, आपको अपीयर करना होगा इंटरव्यू के लिए अगर आपने एग्जाम पास किया है। क्योंकि आपने एग्जाम दिया है तो इंटरव्यू के लिए दिया है, तो आपको इंटरव्यू के लिए पास होना मतलब इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और फिर मोहम्मद फैजल अंसारी का है कि सर प्लीज सजेस्ट समथिंग रिगार्डिंग एचआर राउंड। तो एचआर राउंड के लिए आदर्श सर ने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर प्रशांत सिंह का क्वेश्चन है, सर इफ एनी पर्सन इज गुड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक 4-star कोडर इन कोडशेफ और जीएफजी एंड मेंशन्ड इन द रेज्यूमे, देन interviewed asked more coding questions or only they ask core और subjective based questions। तो अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है यू आर अ 4-star और 5-star कोडर, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि आपको कोडिंग बहुत अच्छी आती है, तो आपके कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े से कम हो जाएंगे आपके एज कम्पेयर टू कोडिंग क्वेश्चंस। लेकिन थोड़े से पूछेंगे जरूर वो, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अप्रोचेस चेक होती हैं आपकी। और फिर निधि राठौर ने पूछा है कि सर इंग्लिश वुड बी मैटर देयर और नॉट, और प्लीज एक्सप्लेन अबाउट एमआर राउंड। तो आदर्श सर ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। सो एंड पीयूष अवस्थी का है, इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन देन हाउ वी कैन स्किप दैट क्वेश्चन। सो अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो इसमें क्या है कि आप स्किप आप बोलिए कि सर मैं ट्राई कर सकता हूँ, मतलब मुझे पूरी तरीके से नहीं मालूम है लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। तो आप ये कह सकते हैं। और स्किप करने की बात रही तो अगर वो आपसे सब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको ज्यादातर तो स्किप नहीं करना चाहिए, और आप उससे कह सकते हैं कि
इंटरव्यूअर जो होंगे आपके, आप उनसे कह सकते हैं कि सर ये वाला मुझे नहीं आता है कंफर्म, लेकिन मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, तो वो आपको डांटेंगे वाटेंगे कुछ नहीं, आपको मौका देंगे। तो ये सनी भैया, यहाँ पे एक सिचुएशन और बनती कि अगर इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने सही आंसर दिया बट वो गलत है, तो उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उस टाइम पे देखिए ये इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आंसर सही है लेकिन इंटरव्यूअर के हिसाब से आंसर गलत है, यस सर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपका। यस सर। लेकिन आप कॉन्फिडेंट आंसर सही है तो आप उसकी तरफ जाइए, फिर थोड़ा सा सोचिए, उनके भी एक्सप्रेशन चेक करिए कि उनके हिसाब से आंसर सही है गलत है, उनके एक्सप्रेशन आप चेक करिए। लेकिन अगर वो सीधे सीधे बोल दे रहे हैं आंसर गलत है, तो आप ये कहिए सीधे सीधे कि सर मेरे हिसाब से आंसर यही है, मैंने इसको जहां तक कि अब उनसे आप मतलब कि एग्रेसिव होके माना बोलिए, बहस ना करिए कुछ, आप ये कहिए सर जहां तक सर मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरा अप्रोच है, मेरे हिसाब से सर ये आंसर होना चाहिए। पोलाइट वे रहना चाहिए, Yes. अग्रेसिव वे नहीं रहना चाहिए। सर टीम राइटर भी की तरफ से एक क्वेश्चन है। सर टीसीएस, जैसे टीसीएस एनक्यूटी और टीसीएस निंजा है, तो टीसीएस कोड बीटा ये डिफरेंट है, ये क्या है सर टीसीएस कोड बीटा, और डिफरेंट कैसे इन TCS तीनों से? जी जी, टीसीएस कोडवीटा क्या है, कोडवीटा का नाम देखिए, नाम में ही कोड आ रहा है, यस सर। तो उसमें क्या रहता है कि टीसीएस कोडवीटा जो हम लोगों के समय में था, उसमें 7 कोडिंग क्वेश्चंस थे, 7 कोडिंग क्वेश्चंस थे, और उसमें से आपको अगर आपने 3 कर लिए हैं, ज्यादातर उस समय क्या था, अगर जिसने 2 कर लिए हैं तो उनको भी इंटरव्यू का मौका मिलता है, और जिसने 3 कर लिए हैं उनको भी मिलता है मौका। तो 7 क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो करने होते हैं। अगर आपने 7 सातों कर लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है, आपको डायरेक्ट डिजिटल के लिए ऑफर आता है, डिजिटल के इंटरव्यू के लिए। और अगर आपने 3 या 4 किए या 2 किए तो आपको निंजा के लिए ऑफर आएगा इंटरव्यू के लिए। तो है वो भी वही चीज कि आपको जॉब के लिए ही आपको वो पेपर देना है, मतलब एग्जाम देना है। ओके सर। सर तो जो हम लोग का सेशन था यहीं तक था, और जो लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ऑडियंस के क्वेश्चंस रखेंगे, वो आप लोगों ने पहले रख दिए। मातेश्वरी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, यस सर, श्योर सर, श्योर। मातेश्वरी सर। Yes, yes. Yeah, like यस सर, यस about एक मैनेजर राउंड, लाइक इसे मैनेजर राउंड क्या होता है एक्चुअली, जो मैंने फेस किया, आई थिंक लाइक फॉर लिटिल लाइक कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन इसमें होता है, लाइक कुछ या तो टेक्निकल होता है या तो नॉन टेक होता है, लाइक ये जस्ट जेनरिक क्वेश्चन इसमें कुछ होते हैं, बट वो क्वेश्चन देखने में लगता है कि हाँ ये नॉर्मल है, बट एक्चुअली में उसमें टेक्निकली होता है। लाइक आपकी माइंड सेटअप चेक करते हैं पूरी टोटली, जो मैंने फेस किया, जो मैंने समझा अपने, लाइक अराउंड 20 इंटरव्यू लाइक आई अटेंड इन लास्ट 1 ईयर। सो लाइक इन एमआर राउंड लाइक ये होता है, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। हमसे जैसे मेरे इंटरव्यू ने पूछा, ये बताइए कि आप यूपी के रहने वाले, हमने कहा यस, तो बोल रहे हैं कि आप यूपी के, तो आपको लाइक बिहार के आपके पास में ही है ना, तो हमने कहा यस बिहार पास में ही है। तो कह रहे फिर आपको भोजपुरी सॉन्ग तो बहुत ज्यादा पसंद होगा, तो हमने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं नहीं, अगर आप यूपी का डेफिनेटली आपको पसंद होगा, मतलब उनका सेंस ये नहीं था कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, एक्चुअली वो मेरी माइंड सेटअप और लाइक टोटली वो देखना चाह रहे हैं कि आप कल्चर फिट हो या नहीं, लाइक आप मेंटली भी लाइक जहाँ से आप बिलोंग करते हो वही हो एक्चुअल में, या आप प्रोफेशनली को डिजर्व करते हो, जो उनकी कॉर्पोरेट है, जो उनकी लाइक अपनी खुद की रिक्वायरमेंट है कि लाइक इंसान की मेंटालिटी कैसा होना चाहिए, वो सोशलिस्ट है या नहीं, वो प्रोफेशनली है नहीं, मतलब बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। बस इतना सिंपल सा होता है, कुछ ज्यादा उसमें ना तो टेक्निकली होता है, बट बेसिकली इतना ही होता है कि आपकी मेंटालिटी चेक करते हैं और कल्चरल फिट भी देखते हैं कुछ उसमें टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होता है एक्चुअली हमारा राउंड, आई थिंक जो मैंने फेस किया अपने। हाँ, मातोश्री सर ने बिल्कुल सही बताया। एमआर राउंड्स में आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज दिए जाते हैं वेयर दे चेक दैट व्हाट यू विल डू, व्हाट इज योर माइंडसेट, हाउ यू विल हैंडल दैट सिचुएशंस। बिकॉज जब आप एमएनसीज में वर्क करते हो तो आपको जरूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ कोडिंग ही कर रहे हो। देयर आर मेनी सिनेरियोज, देयर आर मेनी हायरार्कीज दैट यू नीड टू फॉलो, जहाँ पे आपको खुद एक ऐसा स्टेप लेना होगा कि इस सिनेरियो में मुझे क्या करना चाहिए। दैट्स व्हाई द मैनेजरियल राउंड इज ऑल अबाउट। तो जब मैनेजरियल राउंड हुआ था, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वो मुझे ध्यान आ गया कि मान लीजिए कि आप आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो, उस कंपनी में एक प्रोजेक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इस समय क्रिटिकल सिचुएशन पे है, ठीक है, जिसमें आपको अपना प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है विद इन 2 डेज। आप उस पर वर्क कर रहे हो, लेकिन आपके फैमिली से कॉल आती है कि आपकी मदर की तबीयत खराब हो गई है, शी इज नाउ एडमिटेड इन हॉस्पिटल।
So what you will do? You will left the work and go to see your mother, and you will stay here and leave your mother. तो अंशुल, तुम इसका आंसर देना चाहोगे? सर, यस सर, आई वुड। अगर मैं जो मैंने सिनेरियोस देखे हैं इस तरह के, क्योंकि इंसिडेंट्स हुए हैं, तो अगर मैं अपने वर्क के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, तो मैं यही करूंगा कि मैं मदर को छोड़ के तो वर्क पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे इन चीजों ने बहुत ज्यादा सक्सेस लिए, लाइक एग्जांपल विराट कोहली। Okay. So yes, perspective सबका अलग हो सकता है, but according to me and according to what mock questions that I have faced, the best answer is, maybe there are few other different answers, but the best answer according to me कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कितना वर्क है। अगर वहां पे मेरी मदर के साथ कोई और लोग भी हैं, then it is okay, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, then it is okay, I will complete my work, then I will go to see her. अगर वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, then I will hand it my work to another person and I will inform my manager that I am going, और मेरा ये वर्क एक पर्टिकुलर पर्सन कंप्लीट करेगा विद इन दैट टाइम स्पैन। आपको कोई इशू नहीं आएगा आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन के लिए। अगर कोई भी इशू आता है, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई विल बी अवेलेबल ऑन कॉल। अगर कोई भी इशू आता है तो मैं कॉल से उसको हैंडल करने के लिए केपेबल होऊंगा। Okay, So sir, I according think to that, me, that's a perfect answer. yeah, I didn't think like that. yeah. So this is the whole thing in the MR कि वो ऐसे सिनेरियोज देंगे जो आपको आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि आप पहले तो ये सोचोगे कि मैं अगर ये कह दूंगा कि मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ, तो आप कंपनी के खिलाफ कर रहे हो कि आप कंपनी के लिए डेडिकेटेड नहीं हो। ठीक है, अगर ये कहते हो मैं काम के लिए हूँ, तो उनका एक सवाल ये आ जाएगा, तो अच्छा आपको अपनी फैमिली से मतलब नहीं है, आप इतने सेल्फिश हैं कि आप अपने काम को देखते रहेंगे, आप अपनी फैमिली को कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं। एक सनी सर से सवाल हुआ था, सनी सर आपको याद है कि भाई और आपके बीच में जॉब किसको मिलेगी? सनी सर, आर यू देयर? हेलो, Yes, yes, sir. मेरा माइक बंद था और मैं बोल रहा था। तो ये था, मेरे से पूछा गया था कि मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त हैं, आप लोगों को, जैसे कि आप दोनों को जॉब चाहिए, तो आप दोनों में से मैं किसको जॉब दूं? तो इस पे मैंने आंसर दिया था उनको कि सर वैसे आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि आप किसको जॉब दीजिए। तो लेकिन ये एक सिचुएशन होगी, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कम स्ट्रांग है, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे जॉब दीजिए। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप उनको जॉब दीजिए, और बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, आप किसको जॉब देना चाहते हैं, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। Okay, sir. दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी उतने ज्यादा अच्छे थे जैसे होना चाहिए उनके हिसाब से। मैं जो जा रहा था, मैं वन साइडेड जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक इन ऑल द आंसर्स, यस, यस सर, डिप्लोमेटिक नॉट ही वन होना चाहिए साइडेड। हर चीज में। और जहां कि तक वो आपने आपको बात की किसी एक थी, चीज में पॉइंट आउट कर ही नहीं पाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप डिप्लोमेटिक रहोगे तो उनके पास कुछ उठाने के लिए होगा ही नहीं। यस सर, करेक्ट सर। आपने अभी कोडवीटा की बात करी थी अंशुल। यस सर। तो कोडवीटा में हमारे 3 राउंड्स होते हैं, प्री क्वालिफायर, और फिर हमारा सेकंड राउंड होता है, और फिर हमारा होता है ग्रैंड फिनाले राउंड। तो इसमें क्या होता है, 6 आवर्स का टाइम होता है, और हम लोगों के समय में शायद 7 क्वेश्चंस आए थे या कुछ ऐसा। तो 6 आवर्स का टाइम होता है, फिर उसके जो जोनल के विनर्स होते हैं वो सेकंड राउंड में जाते हैं, फिर 6 आवर्स का टाइम होता है कोडिंग क्वेश्चंस के लिए, फिर उसके लिए फिर ग्रैंड फिनाले में जाते हैं। और जो प्री क्वालिफायर और सेकंड राउंड होता है वो होता है ऑनलाइन ऑनलाइन मोड होता है। और जो ग्रैंड फिनाले होता है वो होता है ऑफलाइन मोड, उनके वेन्यू पे, वो कहीं भी हो सकता है उनका वेन्यू, उनका आईऑन जोन हो सकता है या उनका और भी कोई वेन्यू हो सकता है। तो फिर उसमें टॉप 3 कैंडिडेट चुने जाते हैं और विनिंग प्राइज होता है $20,000। और फिर जो फर्स्ट राउंड की क्वालिफायर और सेकंड राउंड की क्वालिफायर और थर्ड राउंड के मेन क्वालिफायर होते हैं, तो उनको इंटरव्यू का भी मौका मिलता है। TCS निंजा और डिजिटल से कॉल्स भी आते हैं उनको इंटरव्यू के लिए, डायरेक्ट कॉल्स। फिर उनको टेस्ट नहीं देना होता, कोई भी एप्टीट्यूड रीजनिंग का कोई टेस्ट नहीं देना होता, फिर डायरेक्ट उनको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आते हैं। ओके सर, जो इसके जो मार्किंग क्राइटेरिया होता है TCS एनपीटी और निंजा का, तो इसमें रैंकिंग का प्रोसीजर क्या होता है? मतलब अगर किसी के मार्क्स सेम आए तो उसकी रैंकिंग आगे पीछे होगी टाइमिंग के हिसाब से या फिर सेम? ज्यादा टाइमिंग का मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर मार्क्स दोनों के सेम है तो टाइमिंग का मैटर कर सकता है। अगर मार्क्स, क्योंकि एक ही हम लोगों के पास, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके और मेरे 90% है, दोनों के 90% है। अब हम लोग कैसे डिसाइड करें कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है? तो उसमें क्या होता है कि जिसने पेपर पहले खत्म किया उसको फर्स्ट दे देंगे हम लोग, जैसे कि हम लोगों का टाई ब्रेकर होता है हैकर रैंक पे भी।
हेलो, Hello. Yes, sir. Yes, sir. Audible. एम ऑडिबल? तो Yes, ये sir. होता है कि अगर मान लीजिए कि दोनों के जैसे मेरे भी 90% है, आपके भी 90% है, उस केस में हो सकता है कि टाइम का वो लोग करें कुछ, लेकिन ज्यादातर ये होता नहीं है। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस फंसती हैं तभी ये होता है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी का अलग सेक्शनल कट ऑफ है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अलग सेक्शनल कट ऑफ है, सबका सेक्शनल कट ऑफ भी अलग अलग होता है। एक चीज है, जैसे जब प्रोग्रामिंग में अगर आपके 2 सवाल आ रहे हैं तो उसमें एक तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपने एक भी नहीं सॉल्व किया देन यू विल डेफिनेटली not get selected into the TCS Ninja or TCS and QT exams. Means minimum you have to attend one and complete one question in that. यस यस, राइट। एंड एक चीज और है, अब पता नहीं सिनेरियो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जब हम और सनी ने अपना एनक्यूटी का एग्जाम दिया था, देन द प्लेटफॉर्म दैट दे आर यूजिंग, that is not really good for the Python developers. Okay. So I think many of you are working on Python here. Yes, sir. Yes, sir. Most probably all of them. Yeah. We all are So working on Python and C apart from Python. okay. So आप लोग की पहली चॉइस यही रहेगी कि अगर कोडिंग क्वेश्चन आ रहा है you will gonna attend it through Python. Okay. बट वहाँ पे क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म जो देते हैं that is not for the Python. The environment is not for the Python. They have just integrated few Python things in all. Okay. So you have to do the coding on that Eclipse. That is for the Java. सो आप पाइथन का कोड उस पर रन होता है, बट बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आप उसको रन करोगे, पहली बार में नहीं रन हुआ, फिर रन कर रहे हो नहीं रन हो रहा, लेकिन तीसरी बार में उसी पर्टिकुलर कोड को चला दिया, वो रन हो गया। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं इनपुट दे रहा हूँ तो इनपुट नहीं हो रहा, फिर मालूम चला कि ये पाइथन बहुत पुरानी वाली है तो मुझे रॉ इनपुट लिखना पड़ रहा है, उस पर इनपुट नहीं चल रहा है। तो वहां पे वर्जन्स का भी डिफरेंस आ जाता है। तो आप अगर सी पीपी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या सी लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं, अगर सी पे कर रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए। सी लैंग्वेज से वहां पे आप कोड करिए, बेस्ट है, सबसे Sir, फास्ट भी रन होगा। can we opt Java for this? Yeah, you can opt Java for this. Okay, sir. So मेरा यही मतलब है कि अगर आप पाइथन लेके जा रहे हो तो सिर्फ पाइथन लेके वहां पे मत जाइए, कि आप पाइथन पे मे बी जब हम लोगों ने टीसीएस की ट्रेनिंग की थी, क्योंकि हम लोग के ज्वाइनिंग के बाद हम लोग की एक छोटी सी ट्रेनिंग हुई थी टीसीएस की, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म जो दिया था वो प्लेटफॉर्म हैकर रैंक दे दिया था। सो मे बी दे हैव इंटीग्रेटेड द प्लेटफॉर्म हैकर रैंक इन देयर एनक्यूटी आल्सो। बट जब हम लोगों ने पेपर दिया था तब वहां पे टीसीएस वाले हैकर रैंक का इस्तेमाल नहीं करते थे। सो इफ इट इज गुड, अगर वहां पे अगर वहां पे आपका हैकर रैंक इंटीग्रेट हो गया है एनक्यूटी एग्जाम में, देन इट इज गुड। सो आप चाहे पाइथन पे कोड लिखो चाहे जिस पे लिखो, बट इट्स बेटर कि आप पहले से एक बैकबोन लेके चलो कि अगर गिरो तो एक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देन यू कैन कोड इन सी, सी प्लस प्लस और जावा। Okay, sir. Thank you, sir. Now I would like to end this meeting with a most greatest thank you to all of you for giving us their time and making us feel ये अच्छा से प्रिपेयर करने के लिए, गाइड करने के लिए सर थैंक यू। अच्छा, अब किसी के कोई सवाल तो नहीं है? हम लोग मीटिंग एंड करने वाले हैं। नहीं सर, जितने चैट्स में आए थे वो सनी भैया ने कवर कर लिए थे। ओके, सो थैंक यू, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा लास्ट अभी चैट में भी तुम एक सबसे मिलके। और लास्ट क्वेश्चन आया चैट में, सी प्लस प्लस वैलिड। तो अंशुल ने बता दिया, आदर्श ने बता दिया था कि सी प्लस प्लस वैलिड है और सी प्लस प्लस वैलिड है। अब पाइथन में पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी? जो याद होगा, हम लोग लिखते हैं मैप लिस्ट मैप स्प्लिट, जैसे इनपुट लेने के लिए हम लोग लिखते हैं ना, एक ही लाइन में हम लोग को इनपुट चाहिए होता है तो हम लोग लिखते हैं। तो लिस्ट मैप स्प्लिट वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका था पाइथन 2.7 और हो सकता है उससे भी कुछ पुराना हो, और हम लोग का 3.6 में हम लोग मैप स्प्लिट लिखते हैं तो उससे स्प्लिट हो जाता है। तो अब मुझे तो मैप स्प्लिट से करना, मुझे पता था कि मुझे मैप स्प्लिट से करना होगा और मुझे मेरा हो जाएगा काम, और मैंने पूरा कोड लिख दिया। फिर मैंने बाद में चेक किया, उसमें लिख के आ रहा था इनवैलिड, मतलब इनवैलिड एक्सप्रेशन, लिटरल्स नॉट फाउंड, कांस्टेंट्स नॉट फाउंड। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है। फिर उसमें नीचे कुछ लिखा भी होता है, वो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको एरर आ रही है। तो उसमें लिखा था कि this syntax is not allowed और these expressions are not allowed। तो फिर मैंने उसको चेंज करके मैप लिस्ट को हटा के फिर अलग से किया स्प्लिट, नीचे दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में, फिर ऐसे हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सिर्फ पाइथन के सहारे मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपको कोडिंग लैंग्वेज कोई भी आपको अगर लॉजिक पता है तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको कोड कर सकते हैं। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन 4 आपके पास हैं, तो आप सी में भी कर सकते हैं उसको, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। ओके सर, सो थैंक यू सर। सर आदर्श भी आपकी एक बात याद आ गई,
जब आप लोग हम लोग सेकेंड ईयर में आए थे इंट्रोगेट करने, तो आपने कहा था टीसीएस एनक्यूटी और टीसीएस निंजा के लिए आपने कुछ प्री प्रिपरेशन नहीं किया था, बस दे आए थे। हाँ बट ये चीज आजमाना मत ठीक है जी जी सही बात नहीं है। क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी और टीसीएस निंजा का क्या था कि दे आर वेरी बेसिक। टीसीएस निंजा इज वेरी बेसिक। ठीक है, अगर आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड पहले से अच्छी है, आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, तो यू डोंट हैव टू फियर फॉर इट कि आप टीसीएस निंजा कैसे निकलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ वही था, मेरी एप्टीट्यूड रीजनिंग पहले से ठीक ठाक थी और मैंने कोडिंग भी थोड़ी बहुत कर रखी थी जब मैं ये पेपर दे रहा था, तो मुझे इतना फिक्र नहीं थी। तो मैं अपना जैसे मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, मैंने कहा देंगे, देखते हैं क्या होता है, और मैंने दे दिया, हो भी गया। और अच्छी बात ये थी कि उसमें टॉप 100 में रैंक भी आई मेरी। सो आई वाज रियली शॉक्ड। सो इससे ये होता है कि आप अगर आपकी एप्टीट्यूड रीजनिंग है, क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपको एनक्यूटी निकालने के लिए। सनी सर सही के तो कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। एप्टीट्यूड रीजनिंग रियली इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग लग जाओ एप्टीट्यूड रीजनिंग पे इस समय, कि एप्टीट्यूड, क्योंकि आप अभी से वैसे तो है टीसीएस का एग्जाम दोगे, देयर आर मेनी अदर कंपनीज लाइक विप्रो, कॉग्निजेंट। ठीक है, कॉग्निजेंट में भी आपका सेम ही पैटर्न होता है जो आप टीसीएस का देने वाले हो। ठीक है, कैपजेमिनी का सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, तो आप उसमें भी देंगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि एप्टीट्यूड रीजनिंग तो हो गई। ठीक है, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग पे आप काम करना शुरू, जितने भी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर तो है ही, और थर्ड ईयर तो कोडिंग पे भी ध्यान दे थोड़ा। और जो और एप्टीट्यूड रीजनिंग है वो एक तरीके का आप समझिए मैनेजरियल राउंड है, वो एप्टीट्यूड रीजनिंग ही है। हाँ, एक आदमी पानी भरता है इतने घंटे में, दो आदमी कितने घंटे हाँ में यस भरेंगे। यस ऐसे क्वेश्चन देखे हैं मैनेजरियल, हम लोगों ने। ये भी मैनेजरियल है। तो मैनेजरियल राउंड में भी आपसे एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन, आप पेपर से फ्रेंडली होने चाहिए। आपको कोड बोले पेपर में लिखने के लिए, आप पेपर से फ्रेंडली होने चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन और कोई बोले तो आपको फ्रेंडली होना चाहिए पेपर पे लिखने के लिए। तो पेपर फ्रेंडली आप होने चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि देखो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन नहीं होती है, प्रिपरेशन चलती है पहले से ही। जैसे कि आदर्श सर ने बताया कि एप्टीट्यूड रीजनिंग पहले से ही उनकी अच्छी थी, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग आपको शुरुआत से ही करनी होती है। जैसे हम लोगों ने एप्टीट्यूड रीजनिंग स्टार्ट करी थी, हम लोग ने थर्ड ईयर लास्ट में स्टार्ट कर दी थी। आदर्श सर सही कह रहा हूँ मैं? हाँ सही कह रहे हैं। हम लोगों ने थर्ड ईयर लास्ट से एप्टीट्यूड रीजनिंग स्टार्ट कर दी थी, तो इसलिए हम लोग को लास्ट मोमेंट पे उतना ज्यादा हम लोगों ने सफल नहीं हुए कि एप्टीट्यूड रीजनिंग में ये करना वो करना है, क्योंकि हम लोगों ने थर्ड ईयर लास्ट से स्टार्ट कर दी थी। तो ये था। सो बेसिकली चीज ये होती है कि आप ऐसा नहीं सोचो कि मैं टीसीएस निंजा के लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। आप ये समझो कि जितनी एमएनसीज है मैं उनके लिए रीजनिंग एप्टी प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, ये आपको वर्क करेंगी। सो आप अगर रीजनिंग एप्टी पे ध्यान दे रहे हो, देन आई थिंक देयर इज नो फियर दैट यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस टीसीएस निंजा, और वेदर इट इज कॉग्निजेंट, वेदर इट इज कैपजेमिनी और एनी अदर कंपनीज। Okay, sir. Thank you, sir, for this so much valuable information. जितने भी पार्टिसिपेंट बचे हैं सब इसको अप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि यही लोग हैं जो ज्यादा फोकस्ड हैं, बाकी तो आई लेफ्ट कर दिए। मैसेज टू माय ऑडियंस, एक फीडबैक फॉर्म दे दिया गया, तो उसको भर दीजिएगा आप लोग, जैसा भी आप लोग को लगा। ओके सर, थैंक यू सर फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी Okay, मच। Anshul, thanks for calling us out. Thanks for calling It's a us. really great session for me also. And आप सबको फिर से देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यस सर, हम लोग को भी लगा कि सीनियर्स हम लोग को कुछ गाइड कर रहे हैं ऐसे। सही बात है, बहुत सारे ऐसे बहुत लोग हैं अच्छा session जिनको था। मैं जानता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा इन सबको दोबारा देख के। Yes, sir. Sir, I would like to mention my team, Writer Bees, and a special thanks to my friend Pratik Agarwal for taking these initiatives. So Thank you thank you very very much, thank you very much team for calling us, and बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोग से। Thank you, Okay, sir. okay everyone. Thank So we are leaving. Okay, bye. Bye bye.